The next topic of the set theory is Venn diagrams. In Venn diagrams, the universal set U is represented by a points within a rectangle and its subsets are represented by a points in closed curve within the rectangle. The Venn diagram means a rectangle, it is a universal set and the small circles are the subsets of universal. Here is A. Inside the B it means A is subset of B. And the total A is subset of union, B is subset of union. In this A intersection B, A and B are the subsets of union. Here A and B are disjoint sets, no common elements between them. Now the operations on sets, union of sets. Let A and B are two sets. The union of A and B is a set of all those elements which belong either to A or to B or to both A and B. A यूनियन B मतलब दोनों में जो ये हैं कंबाइंड हो जाते हैं. जैसे A यूनियन B इसको रिप्रेजेंट करते हैं U लेटर से A यूनियन B. A यूनियन B is a set of such that X belongs to A और X belongs to B. ये जो X एलिमेंट है या तो एक सेट को बिलोंग करेगा या फिर दूसरे को. X belongs to A union B means X belongs to A or X belongs to B. And X does not A union B means X does not belongs to A and X does not belongs to B. Okay, take an example. Here is example. A set has 1, 2, 3 as elements and B set has 1, 3, 5, 7 elements. If we want to find the A union means all the elements in the union. It means 1, 2, 3, 5, 7. All the elements in A union B. Okay. Any element, suppose 2 belongs to A. 2 belongs to A. इसका एक भी एलिमेंट या तो इसको बिलोंग करेगा या फिर इसको करेगा या दोनों में करेगा. यही मतलब है. A union B means any X is such that any number which belongs to A या तो A में होगा या फिर B में होगा. यही यूनियन का मतलब है. ओके. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. दिस इज a Venn diagram of union. Suppose this is a union, set A and set B. दोनों का कंबाइन करेंगे ये यूनियन है. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन. A union B equal to B union A. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कम्यूटेटिव लॉ. A और B का यूनियन B और A का यूनियन सेम होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. This is a associative law. And the identity element of union is A union phi equal to A. Identity element of any set is A. And A union A means idempotent law. यानी दोनों का यूनियन खुद सेल्फ सेट होगा. And U union A is U. This is a law of union. अगर आप यूनियन में A को मिला देंगे तो भी यूनियन क्या आएगा? पूरा सेट ही आएगा. These are the properties of operations of union. Okay. The next, intersection of. Intersection means common. The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. यानी A और B दोनों में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इसका सिंबल क्या है? इन्वर्टेड U. उल्टा U बनाते हैं. इज यूज टू denote the intersection, this symbol. A intersection B equal to X is such that X belongs to A and X belongs to B. यानी X ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में भी आएगा इसमें भी आएगा. ये सेट A है और ये B. दिस इज द इंटरसेक्शन. ओके. और यहाँ देखिए अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको कहते हैं नल. फाई. A intersection B is फाई. नाउ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टीज भी इसकी भी उसी तरीके से है. फर्स्ट प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. यानी ये तो दोनों में इक्वल रहेगा. दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कॉमन.
if A intersection B to the intersection C equal to the A intersection B intersection C. This property is associative. And phi intersection A, phi naturally null set ही कॉमन आएगा, ये तो आ नहीं सकता. एंड U के साथ अगर यूनियन के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन A. लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन. A इंटरसेक्शन A दोनों में कॉमन, अगर सेम सेट में कॉमन होगा तो A ही आएगा. इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ. एंड द लास्ट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो हम लोग A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन. अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे. टू सेट सेम 1 2 3. A set contains the element 1 2 and 3 and B 1 3 5 7. Now the A intersection B means common. The common इसमें क्या आएगा 1 and 3. The intersection is 1 3. This is the intersection. Intersection means ये दोनों एलिमेंट में हो, और इसको हम लोग लिखते हैं कि X such that X belongs to A and X belongs to B. यानी ये जो एलिमेंट है कॉमन वाला, ये दोनों सेट में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा. यूनियन में क्या होता है, एनी वन में लाई करेगा और लगा रहता है, बट इन दिस एंड. दिस इज द सेट ऑफ सच पॉइंट विच बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट बी. नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A intersection B equal to phi, then A and B are called disjoint sets. दोनों का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ये कहलाएंगे disjoints. जैसे A set contains 1 3 5 7 elements, B 2 4 6 8. Not a single element is common. It means A intersection B equal to phi. Next topic is difference of the sets. The difference of the sets A and B is the set of elements which belong to A but not B. A minus B यानी जो A minus B एलिमेंट आएंगे वो A को तो बिलोंग करेंगे लेकिन B को नहीं करेंगे. देखिए कैसे. A is 1 2 3 4 5, B is 2 4. Now A minus B. A minus B means these elements subtract 2 4. Only remains 1 3 5. This is the A minus B. Okay. Now exercise 1.4. Find the union of each of the following pairs of set. The set X equal to 1 3 5 and Y equal to 1 2 3. Now the X union B. The all elements 1 2 3 and 5. This is the union. You can write X union Y equal to 1 2 3 5. In this A, the element of A is A, E, I, O, U. And the elements of B is A, B, C. Now A union B, you can write A, B, C and E, I, O, U. All the elements. Okay. Now the third one is A is a X is such that X is a natural number and multiple of 3 and B X is a natural number less than 6. यानी यूनियन करेंगे तो X से छोटे क्या आएंगे 1 2 3 को छोड़ दें 4 5 and multiple of 3. All the multiples of 3. 3 के सारे मल्टीपल्स और बाकी 6 से लेस देन नंबर. दीज आर द यूनियन. यूनियन में सारे नंबर आ जाएंगे. In the next fourth one is X is a natural number where X is greater than 1 but less than and equal to 6. 1 से तो बड़ा है लेकिन 6 और 6 से छोटा है. और दूसरा X is a natural number such that X is greater than 6 but less than 10. So all the number union means 1 to 10. Okay, 1 to 10 all the elements from 1 to 10. And fifth one 1 2 3 B is 5. The A union B equal to 1 2 3. All the elements
1, 2, 3. Union. Now the question number 2. Let A equal to AB, B equal to ABC. Is A a subset of B? A is a subset of B. मतलब each element of A is in the set of B. Yes. A is subset of B. Yes. What is A union B? A subset of B. Yes. And A union B equal to A, B, C. A, B, C. All the three elements in the union. Okay. Now the question number 4. If A equal to 1, 2, 3, 4 चार एलिमेंट है इसमें, B 3, 4, 5, 6, C 5, 6, 7, 8, D 7, 8, 9, 10. फाइन. अब दिया गया है कि चारों सेट्स दे दिए गए. अब इसमें से हमको फाइंड करना है A यूनियन B. ये डिफरेंट हमको फाइंड करना है. A यूनियन B. A यूनियन means all the elements of A and B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the A union B. A union C. It means A union C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A union C is 1, 2, all the elements of A and C. 5, 6, 7, 8. This is the A union C. B union C. 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. तो एलिमेंट हमेशा एक ही बार लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखा जाएगा. 3, 4, 5, 6 and 7, 8. This is the union. B union D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B और D के सारे एलिमेंट लिखेंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A यूनियन B यूनियन C. अब देखिए A यूनियन B यूनियन C, यानी तीनों के ही हमें सारे ही एलिमेंट लाने पड़ेंगे. तो क्या आएंगे? 1, 2 पहले A के लिख लेंगे, फिर B 3, 4, 5, 6 एंड C 7, 8. ओके. नाउ A union B union D. It means A, B and D. All the union means 1, 2, 3, 4, फिर B 5, 6 and D 7, 8, 9, 10. And V union C union D, यानी B से शुरू होगा 3 से और D तक. All the elements 3, 4, 5, 6. ये B हो गया, B और C हो गया 7, 8 और ये हो गया 9, 10 D. These are the union sets. Okay. Now question number 5. Find the intersection of each pair of sets of question number 1 above. Intersection of each pair. This is a question number 1. Intersection means दोनों में common. 1, 3, 5. 1, 2, 3. The intersection in x and y is 1, 3. दोनों में common है 1, 3. सेकंड में A, E, I, O, U और यहाँ पर A, B, C. तो दोनों में क्या कॉमन है? ओनली A. इसका आंसर क्या होगा? A. और थर्ड में x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. ए नेचुरल नंबर लेस देन 3, यानी 3 का मल्टीपल 6 से छोटा सिर्फ 3 होगा. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सिर्फ 3. ओके. एंड द फोर्थ में x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नंबर है जो 6 के बराबर भी है, 6 से छोटा है, 1 से बड़ा है. और यहाँ पर 6 to 10. तो कॉमन क्या है दोनों में? 6. इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 6. और लास्ट में 1, 2, 3 एंड 5. इन दोनों में क्या कॉमन है? नल सेट 5. ओके. तो आंसर्स कैसे लिखेंगे? x इंटरसेक्शन y 1, 3. सेकंड में क्या कॉमन था? ओनली a. थर्ड वन में मल्टीपल ऑफ 3 यानी ओनली 3. 6 से छोटा तो यही होगा मल्टीपल. फोर्थ में ओनली 6 कॉमन और लास्ट में 5.
ये इंटरसेक्शन है जो दोनों सेट कंटेन्स करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. इफ A इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, B इक्वल टू 7, 9, 11, 13 and C इक्वल टू 11, 13, 15, D 15, 17. Find all these in intersection and union both. देखिए बनाएंगे कैसे. चारों सेट लिख लिए ABCD. अब A इंटरसेक्शन B, दोनों में क्या कॉमन है. देखिए 7, 9, 11. फर्स्ट में A में 7, 9, 11, इसमें भी 7, 9, 11. तो दोनों में कॉमन आ गया इंटरसेक्शन 7, 9, 11. नेक्स्ट B इंटरसेक्शन C. अब इन दोनों में क्या कॉमन है. 11 कॉमन है दोनों में. 11, 13. देखिए 11, 13 दोनों में है. ये B इंटरसेक्शन C. नाउ A इंटरसेक्शन C, देन इंटरसेक्शन D. देखिए पहले A इंटरसेक्शन C देखेंगे. A और C में क्या कॉमन है. ओनली 11. A इंटरसेक्शन C ओनली 11. और इंटरसेक्शन D. D क्या है आपका 15, 17. क्या कॉमन है दोनों में. नल 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं है. A इंटरसेक्शन C. A और C में 11. ओनली सिंगल एलिमेंट कॉमन 11. B D. B और D में कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि B के एलिमेंट्स क्या हैं 7, 9, 11, 13. D 11, 15, 17. कुछ भी कॉमन नहीं है. नल. अब देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C. A इंटरसेक्शन क्या है आपका 3, 5, 7, 9, 11. ये है इंटरसेक्शन A यूनियन B यूनियन C. B और C का लिखेंगे 7. यूनियन है तो ऑल लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 15. अब दोनों में क्या कॉमन लग रहा है. सिर्फ 11, क्योंकि यहां दोनों में 11 एलिमेंट कॉमन है इंटरसेक्शन में. और 9, 7, 7, 9, 11. ये 3 एलिमेंट कॉमन है 7, 9, 11. नेक्स्ट A इंटरसेक्शन D. A और D में A के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11. D है 15, 17. कुछ भी कॉमन नहीं है. नल. एंड 8th वन इज A इंटरसेक्शन B यूनियन D. यानी A आप पहले लिखेंगे A इज 3, 5, 7, 9, 11. इंटरसेक्शन B यूनियन D. अब देखिए B और D का यूनियन करेंगे 7, 9, 11, 13, 15, 17. पूरा यूनियन करेंगे तो दोनों आएंगे 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन देखना है तो कॉमन क्या है. ओनली 7, 9, 11. नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब देखिए A इंटरसेक्शन B पहले लिखेंगे. A और B में क्या कॉमन है 7, 9, 11. A और B में क्या इंटरसेक्शन है 7, 9, 11. तो पहले A इंटरसेक्शन B हम लोग लिखेंगे 7, 9, 11. फिर इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब देखिए B और C का यूनियन 7, 9, 11, 13, 15. पूरा यूनियन क्या होगा 7, 9, 11, 13 एंड 15. और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 7, 9, 11. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. एंड द लास्ट वन इज A यूनियन D. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द A यूनियन D मीन्स 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17. A यूनियन D. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17. ये यूनियन हो गया. सारे एलिमेंट आ गए. इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब B और C के दोनों लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 15. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको देखना है. क्या कॉमन है 7, 9, 11. 7, 9, 11. 13 नहीं है 15. तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आंसर. द सेट ऑफ 7, 9,
11 and 15. Okay. Next question, question number 7. Question number 7. If A equal to X, X is a natural number. In B, X is such that X is an even natural number. C, X is such that an odd natural number. And D, X is a prime number. Then find A intersection B, A intersection C, A intersection D, A B intersection C, B intersection D, and C intersection D. A is a set of natural numbers and B is a set of even natural numbers. इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या होगा? सेट बी, इवन नेचुरल नंबर्स. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, नेचुरल नंबर्स तो ऑल होते हैं, उनमें इवन अलग निकलेगा तो इवन कॉमन. ए इंटरसेक्शन सी, एक्स इज a set of natural numbers and x is an odd natural numbers. Intersection C means which one is common? C, odd natural numbers. That all natural numbers are 1, 2, 3, 4, etc. Even 2, 4, 6, 8. And odd 1, 3, 5, 7, etc. This one is set of B and this set is C. Therefore, A intersection C equal to C. And A intersection D, X is a natural numbers and X is a prime numbers. So all the prime numbers includes D. It means A intersection D is D. B intersection C, X is an even natural number and X is an odd natural number. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, या तो ऑड है नंबर्स या फिर इवन है. Therefore B intersection C is null set 5. B intersection D, B is an even natural numbers and X is a prime number. It means even natural numbers 2, 4, 6, 8, etc. And X is a prime number. Prime number means 2, 3, 5, 7, etc. Now the common B intersection D is 2. Only 2 is a common element. Next, C intersection D. X is an odd natural number and is a prime number. It means all odd prime numbers. Common is all odd prime numbers. क्या कॉमन होंगे? सारे ऑड प्राइम नंबर्स कॉमन है सी एंड डी में, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं और ये ऑड है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following pairs of set are disjoint? 8, 1, 2, 3, 4 and x. X is such that a natural number, which are x is greater than equal than 4 and less than 6 equal than 6. Which one are the disjoint? Disjoint means no common element between the two sets. The 4 is the common element in the this. The 4 is the element and here is the 4. It means these sets are not disjoint. A, E, I, O, U and C, D, E, F. The common element is E. Therefore, they are not disjoint. Next, X is an even number and X is an odd number. ये disjoint set है, क्योंकि even and odd there is no common element between them. It means third one is disjoint set. Next, 9. If A equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. B equal to 4, 8, 12, 16, 20. C 2, 4, 6, 8, 10, 12 and D. Find A minus B, A minus C and so on. A, B, C, D. A minus B. It means A set में से B के सारे एलिमेंट को हटा देना है. जैसे A minus B means 12 cancel and none other than cancel. तो A minus B equal to 3, 6, 9, 15, 18, 21. 3, 6, 9, 15, 18, 21. सिर्फ क्या किए, जो B का एलिमेंट था उसको हटा दिया. A माइनस सी, A में से C का एलिमेंट हटाएंगे 6 एंड 12 और कोई नहीं, तो क्या बचेगा? A माइनस सी, 3,
6 नहीं आएगा, 9, 12 नहीं, 15, 18, 21। सिर्फ A माइनस सी में C का एलिमेंट A में से हटाना है। A माइनस D इसमें से फिर हटाना है, क्या हटेगा? 15 ओनली। द कॉमन इज 15। 3, 6, 9, 12, 15 कॉमन है D में, ये 15 हट जाएगा माइनस होके, ओनली 18, 21। माइनस मीन्स उसके सेट हटा देने हैं। नेक्स्ट C माइनस A। अब C वालों में से A के हटाना है, तो देखिए C में से A का क्या हटेगा? 6, 12, बस। तो C माइनस तो B माइनस है, C माइनस A, तो C का 2, 4, 6 हट जाएगा, 8, 10, 12 नहीं, 14, 16। एंड B माइनस है 4 रहेगा, 8, 12 हट जाएगा, 16, 20। जो इसमें से इसके एलिमेंट को हटाना है, जैसे D माइनस है, D में से A वाले एलिमेंट हटेगा, कौन सा हटेगा? सिर्फ 15। तो D में क्या बचेगा? 5, 10, 20। ओके। B माइनस C, B में से C हटाएंगे तो क्या हटेगा? 4, 8, B में से हटेगा 4, 8, 12, 16, क्या बचेगा? सिर्फ 20। B में से अगर C वाले एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा? 20। और B में से D वाले हटाएंगे तो क्या हटेगा? सिर्फ 20 हटेगा, बचेगा 4, 8, 12, 16। 4, 8, 12, 16। अब C माइनस B, C में से B वाला कौन सा हटेगा? 4, 8, 4, 8, 12, 16। C माइनस B, तो क्या बचेगा? 2, 4 हट जाएगा, 6 रहेगा, 8 हटेगा, 10, 12 नहीं, 14, 16 भी हटेगा, सिर्फ क्या बचेगा? 2, 6, 10, 14। D माइनस B, देखिए D में से B वाले हटाएंगे तो कौन सा कॉमन हटेगा? सिर्फ 20, बचेगा 5, 10, 15। 5, 10, 15। पहले वाले सेट का बच जाता है, इस वाले सेट के एलिमेंट को हटा देंगे। C माइनस D, C में इतने सारे हैं, D का क्या कॉमन है? इसमें सिर्फ 10 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो क्या बचेगा? 2, 4, 6, 8, 10 हट जाएगा, 12, 14, 16। एंड द लास्ट D माइनस C, D में से C वाले को हटाएंगे तो क्या हट जाएगा? 10, सिर्फ 10 हटेगा, बचेगा 5, 15, 20। 5, 15, 20। क्या करना है? माइनस का मतलब A में से अगर B को घटाना तो B वाले कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, बचे हुए को लिख देना है। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, if x equal to ABCD and y equal to FBDG, then find x minus y minus x and x intersection y. Here is a set x equal to ABCD, b equal to FD, x minus y, y वाला क्या कॉमन एलिमेंट है? b है सिर्फ, तो x में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा? a, c, d, d भी कैंसिल होगा, सिर्फ a एंड c। b और d इसके एलिमेंट थे, दोनों हट गए। और y माइनस एक्स, इसमें से इसको हटाएंगे तो सिर्फ बचेगा f, g। और दोनों में कॉमन क्या है? b एंड d, b एंड d। ओके, a, c, f, g एंड b, d। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The question number 11 is, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational number, then what is the R minus Q? We know that real numbers are all rational and irrational. अगर rational numbers हटा देंगे real में से तो R minus Q क्या बचेगा? Irrational number. R minus Q is a set of all irrational numbers. Next,
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्ट एलिमेंट बिटवीन देम। इसमें तो देखिए 3 कॉमन है, तो ये फॉल्स। ओके, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, इट मीन्स ए कॉमन है, ये भी फॉल्स है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15, देखिए दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। दीज टू आर फॉल्स, थर्ड वन इज ट्रू। एंड नेक्स्ट 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट, मीन्स ये भी डिसजॉइंट है, ट्रू। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज ट्रू। ओके, exercise is finished now.